I greet you in the wonderful name of Jesus. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम अर्ज करता हूं। It's such a blessing to be able to come live on this broadcast with my friends there who speak Urdu. ये बड़ी बरकत बात है मेरे लिए कि मैं लाइव होकर उन दोस्तों से बात कर रहा हूं जो उर्दू बोलते हैं। I have a deep love for all of my Urdu speaking friends. जितने उर्दू बोलने वाले मेरे दोस्त हैं मेरे दिल में उनके लिए बहुत मोहब्बत है And I have a deep concern और बहुत ज्यादा उनकी फिक्र भी है because this pandemic of the coronavirus is spreading around the world so rapidly. इसलिए कि बड़ी बर्क रफ्तारी से यह कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है। And I know that many of you are concerned about how will I feed myself? Where will I get food? और मैं जानता हूं कि आप में भी बहुत सारे फिक्र होंगे कि मैं खाऊंगा कहां, खुराक कहां से आ। Some of you are concerned, will I get this disease? What will it do to me? आप में से कुछ परेशान होंगे कि अगर मुझे ये मर्ज लग जाए तो फिर मैं क्या करूंगा। And I have come with a message of hope for you today और आज मैं आपके लिए एक उम्मीद का पैगाम ले आया हूं to say that you don't have to be afraid और ये कहना चाहता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, because God will give you victory in the midst of this pandemic that is taking place. इसलिए ये जितना भी बड़ा अलमिया है इसके बीच में खुदावंद आपको फतह से हमकिनार करेगा। I had something that happened to me 13 years ago. 13 साल पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ And God spoke to my heart just recently. और खुदा ने हाल ही में मेरे दिल से कलाम किया And He reminded me of what happened 13 years ago. और उसने मुझे याद दिलाया कि 13 वर्ष पहले तेरे साथ क्या हुआ था And how that is so relevant for each of us today. और वो तजर्बा आज हम में से हर एक के लिए बहुत अहम हैसियत रखता And in just a moment, I'm going to tell you about that. है। चंद लम्हों के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो तजर्बा क्या हुआ था, But first, I want to speak to you from the Word of God. लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि खुदा के कलाम से आपसे बात करूं Because the Bible is light in the darkness. क्योंकि बाइबल मुकद्दस तारीकी में रोशनी की है। The Bible is a light for our path. बाइबल हमारी राहों के लिए रोशनी है। So during these dark days, the Bible gives us a lamp. It becomes a lamp to show us how to go. लिहाजा इन तारीक अय्याम में बाइबल मुकद्दस एक चिराग की मां है जो रोशनी दिखाती है, रास्ता दिखाती है कि किस तरफ जाए। So I want to read to you from Psalms chapter 46, verses 1 and 2. लिहाजा मैं जबूर 46 पहली आयात आपकी खिदमत में तलावत करूंगा Because we're living in days that are dangerous and dark. क्योंकि हम ऐसे दिनों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जहां पर तारीकी है और खतरा है। And listen to what the Word of God says. सुनिए खुदा का कलाम क्या कहता है। God is our refuge and strength, a very present help in trouble. खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। When there is danger all around us, जब हमारे चौगिर्द खतरात मंडलाते हैं we have a place of refuge. तो हमारे पास से छिपने की एक जगह है। When we are feeling weak, जब हम अपने आप में कमजोर और नहीफ महसूस करें we have one who gives us strength. तो एक है जो हमें कुव्वत बख्शता है। When we are experiencing trouble right now, जब इस वक्त हम इंतहाई मुश्किलात से दो चार हैं the Bible says we have one who is a help in this present moment. तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि इस खास लम्हे कोई है जो हमारी मदद करने के लिए तैयार है And He is Jehovah God. और वो यहोवा खुदा है। He is the one who will be our refuge. वो है जो हमारी पनाहगाह है। Then listen to what verse 2 says. और फिर सुनिए कि आयत 2 में क्या लिखा है। Therefore we will not fear, though the earth gives away. इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं
खास जमीन उलट जाए though the mountains be moved into the heart of the sea. और पहाड़ समुद्र की तह में डाल दिए जाए। So what the Bible is saying is this: तो बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है no matter what is happening on this earth, कि खा इस धरती पर क्या ही क्यों नहीं हो रहा, even if the mountains are falling into the sea, अगर पहाड़ भी समुद्र में जाए even though there's terrible things happening all over the world, और पूरी दुनिया में बड़े पुरखतर हालात हैं, we will not be afraid. इसके बावजूद हमें घबराने की जरूरत नहीं। And you don't have to be afraid today. आपको घबराने की जरूरत नहीं है। Now, let me tell you why you don't have to be afraid. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको क्यों घबराने की जरूरत नहीं। Listen to what verses 10 and 11 say. सुने कि आयत 10 और 11 की कहती है, Be still and know that I am God. खामोश हो जाओ, जान लो कि मैं खुदा हूं। I will be exalted among the nations. मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद हूंगा। I will be exalted in all the earth. मैं सारी जमीन पर सरबुलंद Then हूंगा। it says, the Lord of hosts is with us. और फिर वो कहता है, लश्करों का खुदा हमारे साथ है। The God of Jacob is our fortress. याकूब का खुदा हमारी पनाहगाह है। We have a great fortress हमारा एक बहुत बड़ा किला है that Satan and all of the enemies of hell cannot penetrate this fortress. ऐसी पनाहगाह के शैतान और उसके जितने भी चेले हैं वो इस पनाहगाह के बरखिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। God is our fortress. खुदा हमारी पनाहगाह है। God is the one who will take care of us. खुदा हमारी फिक्र करने वाला है। And not only that, it is the God of hosts who is with us. और सिर्फ यही नहीं बल्कि लश्करों का खुदा हमारे साथ है। The God who has charge of over all of the host of heaven, he is the one who is with us. वो खुदा जो आसमान के तमाम लश्करों पर हाकिम है वो हमारे साथ Now, है। that's the promise of God. ये खुदा का वादा है। That's the promise of God for you. ये खुदा का वादा आपके लिए It's है। the promise of God for me. ये खुदा का वादा मेरे लिए So है। we don't have to be afraid. लिहाजा हमें घबराने की जरूरत नहीं। Now, with every promise, there's always a command. याद कीजिए हर वादे के साथ एक हुक्म है। God will keep his promise, खुदा अपने वादे को पूरा करेगा, but we must obey his command. लेकिन जरूर है कि हम उसके हुक्म की फर्माबरदारी करें। He has promised us great and wonderful things in this time of trouble in our world. उसने इस दुनिया में इस वक्त जो बड़े अजीब अजीब काम हो रहे हैं इनमें हमारा साथ देने का वादा किया। But there's one thing that we must do for this promise to be fulfilled. लेकिन इस वादे के पूरा होने के लिए एक काम हम करना है। It's not a difficult thing. ये कोई मुश्किल काम नहीं है, It's something very simple. बहुत सादा सी बात है। The Bible says, be still and know that I am God. बाइबल मुकद्दस कहती है खामोश हो जाओ और जानो कि मैं खुदा हूं। So the only thing we have to do is be still तो हमें एक ही काम करना है और वो क्या है? खामोश होना and know that he is God. और जानना कि वो खुदा है। Now, 13 years ago, I was diagnosed with cancer. 13 साल पहले ये मुझ पर ये बात साबित हुई कि कैंसर है And it was a very difficult time for me. और बड़ा मुश्किल वक्त था मेरे लिए। I did not know whether I would live or whether I would die. पता नहीं था कि मैं जीऊंगा या मर जाऊंगा। I had to have surgery. मेरा ऑपरेशन होना था And I went before the Lord at that time और उस वक्त मैंने खुदावंद के हुजूर अपने आप को सौंप दिया। because my heart was filled with fear. मेरे दिल में खौफ था। I did not know whether I would ever be able to travel again.
मैं जान नहीं था कि दोबारा से कहीं सफर करूंगा कि नहीं। And the doctor said that I had to stay at home for 3 months. और डॉक्टर्स ने कहा 3 महीने के लिए घर पे रह। And the Lord spoke to my heart. और खुदावंद ने मेरे दिल से कलाम किया। And this was the verse that he spoke to my heart. और ये वो आयत है जो खुदावंद ने मुझसे बात की इसके जरिए। Be still and know that I am God. खामोश हो जा और जान कि मैं खुदा हूं। And for 3 months, all I did was read the Bible and worship Jesus Christ. 3 माह के बाद मैंने क्या किया, बाइबल मुकद्दस पढ़ी और फिर से खुदावंद की परस्तिश और तमजीद करने लगा। I could not leave my home. अपना घर तो छोड़ नहीं सकता था, I did not know what my future held, इजाजत नहीं जानता था नहीं कि मैं आगे कुछ करूं, but I met with God. लेकिन इस दौरान मेरी खुदावंद से मुलाकात हुई And God filled me with his presence. और खुदा ने अपनी हजूरी से मुझे भर दिया। And I can tell you those were 3 of the most wonderful months of my life. और मैं आपको बता सकता हूं कि वो 3 महीने मेरी जिंदगी के खूबसूरत 3 महीने बने। And Jesus was so real to me. और यीशु मसीह वाकई मेरे लिए हकीकत बन गया। And for the past 13 years, I've seen God work in amazing ways. और पिछले इन 13 सालों में मैंने देखा खुदा बड़े हैरान कुन जराए से काम करता। God healed me. खुदा ने शिफा बख्शी, God raised me up. खुदा ने मुझे उठाया। And then God has allowed me to see his name exalted among the nations, like he said in this passage. और फिर खुदा ने मुझे मौका दिया कि जैसे इस गाने में लिखा है, वो मुझे शर्फ बख्शे कि उसके नाम को मैं ऊंचा करूं, बुलंद करूं। And even in this very moment, I'm exalting the name of Jesus in the nations 13 years after that happened. 13 साल पहले ये हुआ, लेकिन 13 साल बाद आज मैं कौमों और उम्मतों में खुदावंद के नाम को बुलंद करता हूं। And when this pandemic began to spread around the world here in the last few weeks, और जब गुज़रे चंद हफ्तों से ये वायरस का समा पूरी दुनिया में है, the Lord spoke to my heart. तो खुदावंद ने मेरे दिल से कलाम किया। And he said, this is what I'm doing in the whole world. उसने कहा ये वो है जो मैं पूरी दुनिया में कर रहा हूं। What I did in you is what I'm doing in the whole world. जो कुछ मैंने तेरी जिंदगी में किया, वो सारी दुनिया में करूंगा। People cannot travel like they used to travel. लोग जैसे सफर करते थे, वो सफर नहीं कर पा रहे। Many people have to stay in their homes. बहुत सारे लोगों को अब अपने घर में लॉकडाउन होना पड़ा है आपकी तरह। And I'm saying to the world, मैं दुनिया से आज कह रहा हूं, be still and know खामोश रहो that I am और God. जानो कि वो खुदा है And God will make himself known to us. और खुदा अपने आप को हम पर जाहिर करेगा। Now, who is he? तो वो कौन है? He is Jehovah Jireh. वो यहोवा यरी है। He is God, our provider. वो खुदा है जो हमारे लिए मुहैया करने। You don't have to be afraid आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, because he is Jehovah Jireh. क्योंकि वो यहोवा यरी है। He will provide for you. वो आपके लिए मुहैया करेगा। He is Jehovah Rapha, God our healer. वो यहोवा राफे है, खुदावन हमारा शाफी। He is the one who will heal you. वो है जो आपको शिफा बख्शेगा। But he is Jesus. और वो यीशु है। Jesus, the Son of the living God. यीशु जिंदा खुदा का बेटा। You see, Jesus was not just a great prophet. यीशु सिर्फ कोई अजीम नबी नहीं था, He was not just a great religious teacher. वो सिर्फ कोई बड़ा मजहबी आलम नहीं था। Jesus is God come in human flesh. यीशु खुदा है जो इंसानी जामा में इस धरती पर आ गया। One of the names given to Jesus was Emmanuel.
यीशु को जो एक नाम दिया गया वो इमैनुअल है, which means God is with us. इसके माना है खुदा हमारे साथ है। So in these days, लिहाजा इन मुश्किल अय्याम में you can get to know Jesus. आप भी खुदाबंद यीशु मसीह को जान सकते Now, हैं। there's two ways in which you can get to know Jesus. दो तरीके हैं कि आप कैसे यीशु को जाने। If you've never come to know him, you've never met him, you've never embraced him, अगर आप कभी भी यीशु से मिले नहीं, यीशु को कबूल नहीं किया, यीशु पर ईमान नहीं लाए, उसको गले नहीं लगाया, you can believe on him right now. तो आप अभी इसी वक्त यीशु पर ईमान ला सकते हैं That he is the Son of the living God. कि वो जिंदा खुदा का बेटा है, That he lived a sinless, perfect, holy life. जिसने पाक और बेगुनाह और बेऐब जिंदगी गुजारी That he died on a cruel Roman cross for you. और जालमाना अंदाज से सलीबे कलवरी पर आपके लिए मर गया। That God raised him from the dead on the third day. लेकिन खुदा ने तीसरे दिन उसको मुर्दों में से जिलाया। And that he's alive, that he's alive. वो आज भी जिंदा है, And when you जिंदा है। believe in him, he will pour his spirit out to live on the inside of you. आप उस ईमान लाए तो वो अपने पाक रूह को आपके अंदर बसने देगा So that you can know him. ताकि आप उसको जान सकें। So today, if you will believe on him, if you will follow him, लिहाजा आज अगर आप उस पर ईमान लाएंगे, उसकी पैरवी में हो चले, his spirit will come to dwell on the inside of you. तो उसका रूह आपके मन में आकर सुकूनत करेगा And you can know God. और आप खुदा को जान Now, पाएंगे। the second way you can know God दूसरा नुक्ता जिसके जरिया से आप खुदा को जान सकते हैं, there are many of you who have already followed Jesus. आप में से बहुत सारे हैं जो पहले ही मसीह की पैरवी में हैं। You've come to know him, you know God, you love God, you're following Jesus. आप खुदा को जानते हैं, उसके प्यार को जानते हैं और आप उसकी पैरवी कर रहे हैं। But one of the greatest Christians who ever lived was the Apostle Paul. लेकिन जितने भी मसीही हैं उनमें से सबसे बड़ा शख्स था जो पौलुस रसूल था। And he said that I might know him. और उसने कहा मैं उसको जानूं। In the fellowship of his sufferings, खुदावंद यीशु मसीह के दुख में शरीक हूं, in the power of his resurrection. उसके जी उठने की कुदरत में शरीक हूं। You see, you can know God in this time of suffering. इस मुश्किल वक्त में आप भी खुदा को जान सकते हैं। He will be so real to you. वो आपके लिए सचमुच हकीकत बन जाएगा। That's what happened to me 13 years ago. और 13 साल पहले मेरे साथ यही तो हुआ। In the midst of my suffering, I came to know Jesus in a deeper way than I had ever known him. इंतहाई दुख के आलम में मेरे खुदाबंद को ऐसे गहरे तौर पर जाना जैसे कभी नहीं जाना था। And then you can know him in the power of his resurrection. और फिर आप खुदाबंद को उसके उठने की कुदरत में जान सकते हैं। Yes, God healed me. हाँ, खुदा ने मुझे शिफा बख्शी। Yes, God took care of me. हाँ, खुदा ने मेरी फिक्र की, देखभाल की। And God will take care of you and God will protect you. और वो खुदा आपकी भी गिरी करेगा और आपका भी मुहाफिज Now होगा। you need to act wisely and do what the doctors and the medical people say. अब आपको बड़ी दानाई और हिम्मत से करना है जो कुछ शोबाए तिब वाले आपको मशवरा देते हैं, But you can trust God. लेकिन इसके साथ साथ खुदा पर आप भरोसा कर सकते And हैं God will be there with you. और खुदा वहां आपके साथ होगा। I would like to pray for you. मैं चाहूंगा कि आपके लिए दुआ करूं। And then after I pray for you, if you would like to just ask Jesus to take control of your life, you can do that. और जब आपके लिए दुआ कर लेता हूं और अगर आप चाहें अपनी जिंदगी खुदाबंद को दें तो आप दे सकते हैं And you can get to know him today. और आप आज खुदाबंद को जान सकते हैं। So let's pray together. आइए हम मिलकर दुआ करें। Oh, Father, I pray for everyone watching this live stream right now. आसमानी पिता, इस वक्त जितने भी इस प्रोग्राम को देखते हैं उनके लिए दुआ करता हूं। I pray that you would touch them in the name of Jesus.
कि यीशु के नाम से तू उनको छू ले। I pray you would protect them. दुआ करता हूं उनकी हिफाजत। I pray that you would provide for them. इस वक्त उनकी जरूरियात पूरी कर। I pray they would come to know you, the true and living God. दुआ करता हूं कि तुझ जिंदा और हकीकी खुदा को वो पहचान पाए। And I pray they would know your son Jesus. और दुआ करता हूं कि मेरे बेटे यीशु को जाने। Oh, come to them in these moments, I pray. ओ खुदावन आ मुश्किल घड़ियों में उनके And पास cast out all the fear. और उनके सारे खौफ मिटा दे। And right now, I want you to pray with me. इस वक्त चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ मिलकर दुआ करें। Just pray sincerely, pray from your heart. दिल से संजीदगी से दुआ करें। Dear Father, प्यारे आसमानी बाप, I believe in you. मैं तुझ पर ईमान लाता हूं। I believe in your son Jesus. मेरे बेटे यीशु पर ईमान लाता हूं। I believe that he is the Son of God. ईमान लाता हूं कि वो खुदा का बेटा है। I know I failed you. मैं जानता हूं कि मैंने गुनाह किया। Please forgive me. मुझे मुआफ फरमा। Jesus, come into my heart. यीशु मेरे दिल में आ। Take control of my life. मेरी जिंदगी का कंट्रोल खुद संभाल। Change my life. मेरी जिंदगी को बदल डाल। I want to know you. चाहता हूं कि मैं तुझे जानूं। I want to follow you. मैं तेरी पैरवी में हो लेना चाहता हूं। In Jesus' name, यीशु के नाम। amen. आमीन। आमीन। If you prayed that prayer, अगर आपने हमारे साथ मिलकर यह दुआ की you were sincere and you prayed in faith, और संजीदगी से ईमान के साथ यह दुआ की, God heard you. तो खुदा ने आपकी दुआ को सुन लिया। Now you need to follow Jesus. अब आपको खुदाबंद की पैरवी में हो लेने की जरूरत है। And I want to encourage you to come back to this Facebook page or come to our Facebook page, Sammy Tippett Urdu. मैं चाहूंगा कि आप दोबारा से इस फेसबुक पेज पर आए या मेरी वेबसाइट है सैमी टिप्पट उर्दू। And we will have daily devotions that will help you to grow in Christ. और हर रोज रूहानी ख्याल होंगे आप ये ताकि आप रूहानी तौर पर तरक्की पाए। For those of you who are watching this by social media, आप जो सोशल मीडिया के जरिए इन वीडियोस को इस वीडियो को देख रहे हैं, if you prayed that prayer with me, अगर आपने ये दुआ मेरे साथ मिल की, would you just type in the comments, I prayed. That's all you have to say. I prayed. तो क्या आप कमेंट्स में ये लिखेंगे कि मैंने दुआ, बस इतनी सारी बात, मैंने दुआ की। And that will let us know that we will pray for you. तो ये इसलिए हमें पता चलेगा ताकि हम आपके लिए दुआ। So you just type in, I prayed right now, आप यही लिखना, मैंने दुआ की है, and we will pray for you. और फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे। God bless you. खुदावंद आपको बरकत बख्शे। God bless your family. खुदावंद आपके खानदानों को बरकत दे And God keep you. और खुदावंद आपको महफूज रखे।